This YouTube video is part of our warehouse and inventory management presentation for the University of Lahore, and it's purely educational. It does not have any business concerns. Bismillahirrahmanirrahim. I am Hamad Atta, and we are basically going to present our inventory and warehouse final presentation for the second semester. And I would like to introduce myself and my group also before starting the presentation. My name is Ahmed Atta. I am a chemical engineer from Punjab University, and I have about 34 years, more than 34 years experience in chemical plant operations in Fauji Fertilizers, NSC, ICI, Crescent, Ibrahim Fibers, and I have worked in urea, ammonia, polymers, fibers, a lot of other things also. And currently, I am doing my master's in engineering management from the University of Lahore, and also I am working as a consultant for ICI Polyesters. Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammed Javed. I have done my economics, BS economics from BZU Multan, and now I'm running my fruit and vegetable supply business. And also I'm in fish export for the last 3 years. And now I'm doing masters in project management. Thank you so much. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Salim. I have done BS Civil Technology, worked in FWO 3 years, teaching in a college as a HOD, doing master in engineering management from UOL. My name is Mohammed Taimur Subbu. Bachelor of Arts, BZ University Multan. Worked in Borno Bakery as a supervisor. Worked in Hinduthan Bakery. Worked in Lahore School of Professional Study as assistant product officer. Current doing master and project management. Current working in the Lahore School of Professional Study as a auditor. Thank you, all of you. Our topic for the presentation is evolution of warehousing in polyester fiber manufacture, and it will basically showcase the problems faced in the warehouse where the polyester is produced, and also the evolution over time, what has happened and what is happening to improve the warehousing and space utilization concerns. Yes, over to you, Salim. Packing of polyester fiber. बेसिकली ये जो पोलिस्टर फाइबर होता है इसको प्रोड्यूस किया गया 1941 के अंदर बाय ICI. तो पोलिस्टर फाइबर जो है ये एक कॉटन की तरह का होता है और इसको बेल्स के अंदर पैक किया जाता है और इसकी जो शेप होती है वो एक बॉक्स की तरह होती है. उसके बाद हमारे पास इसको जब हमें बनाया जाता है बेल्स को, उसमें जो हमारा यूज प्रेशर होता है वो 3000 किलो न्यूटन्स होता है और बेल्स जो होती है इसमें डबल पैक होती है. एक हमारे पास इनर लेयर होती है और एक हमारे पास आउटर लेयर होती है. अब जो आउटर लेयर होती है वो PP की बनी होती है और जो इनर लेयर होती है वो PE की बनी होती है. तो इनर लेयर जो है उसमें जो है वो प्रोटेक्ट करता है मॉइस्चर को और बेल जो है वो उसका जो वेट होता है वो 200 से 400 तक होता है. बेसिकली ये जो पोलिस्टर होता है ये कॉटन की तरह का ही होता है और इन दोनों को मिक्स करके धागा बनाया जाता है. और चूंकि ये इतनी नहीं होती, कॉटन जो है वो इतनी नहीं होती, इसलिए इसमें पोलिस्टर जो है उसको मिक्स किया जाता है. अब जब हमारे पास बेल्स तैयार हो जाती है तो उसकी पैकिंग की जाती है. तो पैकिंग के दौरान कुछ बेल्स जो होती है ये डैमेज हो जाती है. तो डैमेज की वजूहात क्या होती हैं कि बाज़ औक़ात इसके ऊपर जब इसको तैयार कर लिया जाता है तो इसको जब एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो इसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है. तो इनकी प्रेशर बर्दाश्त करने की एक सलाहियत होती है. जब उससे इंक्रीज जाता है तो इसकी इनर या आउटर लेयर जो होती है वो डैमेज हो जाती है. या फिर इसको अपलिफ्ट करने के लिए या लोड करने के लिए जब हम वेल जो है वो लिफ्टर इस्तेमाल करते हैं तो उसके दौरान ये डैमेज हो जाती है. तो जब ये डैमेज होती है तो इसके अंदर मॉइस्चर का खदशा होता है जिसकी वजह से ये मॉइस्चर इसके अंदर चला जाता है और ये खराब हो जाती है. ये डैमेज होती है तो इसके अंदर नेक्स्ट लोडिंग ऑफ बेल्स ऑन ट्रक्स. जब हमारे पास बेल्स जो है वो तैयार हो जाती हैं तो हमने इसको यूज करने के लिए
वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेजना होता है तो उसके लिए हम ट्रक्स यूज करते हैं। तो जब बेल्स ट्रक्स के ऊपर लोड हो रही होती हैं तो उसमें हम एक ट्रक्स के अंदर 3 लेयर्स बेल्स की रख रहे हैं या 4 रख रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हमने जितनी बेल्स एक तरफ जो है वो लोड करनी है उतनी ही हमने दूसरी तरफ लोड करनी है, ताकि हमारा जो वेट है वो बैलेंस रहे। और उसके बाद जब हमने स्मॉल डिस्टेंस यूज करना है, आमतौर पर ये जो बेल्स होती हैं इनको 20 टू 25 किलोमीटर तक ले जाने के लिए ओपन ट्रक्स यूज करते हैं, और इनको लोड करने के बाद इनको ऊपर से बांध दिया जाता है, बांधने के बाद ऊपर से कवर्स कर दिया जाता है, ऊपर से ढांप दिया जाता है, ताकि रास्ते में जाते हुए बारिश या अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उससे बेल्स को बचाया जा सके। अगर हमने ज्यादा ट्रैवलिंग के लिए इन बेल्स को लेके जाना है तो उसके लिए हम ओपन ट्रक्स यूज नहीं करते, उसके लिए हम क्लोज ट्रक यूज करते हैं जो ऊपर से बंद होते हैं। उसके बाद स्टैकिंग ऑफ बेल्स इन वेयर हाउसेज के अंदर जो यूजुअली स्टॉक लेयर्स होती हैं वो 5 और 6 होती हैं। उसके लिए हम जो है बेल्स को लिफ्ट करने के लिए लिफ्ट ट्रक यूज करते हैं, उसको यूजुअली कॉल्ड क्लैम्प ट्रक्स भी कहते हैं, लिफ्टर भी कहते हैं। अब जब लिफ्टर जो है इसको यूज किया जाता है तो इसने अप लिफ्ट करने के लिए बेल्स को यूज किया जाता है। जब हम ट्रक्स के अंदर 3 लेयर्स जो है वो इजीली अपलिफ्ट करते हैं, एक जो लिफ्टर होता है अगर उसमें 3 बेल्स जो है वो ऊपर रखने के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं तो वो इजीली उसको हाइट तक भी ले जाएगा और उसका कोई टिल्टिंग का खदशा भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसके अंदर एक स्पेसिफिक वेट 6 लेयर्स है या इससे ज्यादा जो है वो बेल्स रख देते हैं तो उसका टिल्टिंग का खदशा होता है। और दूसरी ये है कि हमने जहाँ जिस हाइट तक हमने लेके जाना होता है उस तक हम इसको ले जा भी नहीं पाते। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं स्पेस यूटिलाइजेशन पे बात करूंगा कि हमने जो इसकी वेयर हाउसिंग में जो स्पेस होती है उसे प्रॉपर तौर पे कैसे यूटिलाइज करना है और उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उसमें क्या मुश्किलात हैं और उनको हमने कैसे क्या टेक्निक्स यूज करके हमने उनको दूर करना है। नॉर्मली जो ब्लिस्टर के प्लांट्स होते हैं वो 10 मीटर की हाइट पे होते हैं और उसकी सिर्फ हम हाफ यूज कर रहे हैं। जैसे आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं कि बिल्कुल एक सिर्फ एक सर्टेन हाइट तक हमने उसको स्टैक किया हुआ है और जो राइट साइड पे है वो देखिए हमने उस पर एक इंटरफ्लोर डाला है हाइट पे के 6 के बाद भी हम उसको और 4 से 5 मजीद या 6 मैक्सिमम भी हम उसको स्टोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम वेयर हाउस डबल कैपेसिटी निकाल सकते हैं, जो कि एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव और स्पेस इफेक्टिव तरीका है वेयर हाउस को यूज करने का। और सेकंड में इब्राहिम फाइबर्स लिमिटेड की बात करूंगा जिसकी बेस पे हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। जो उनकी डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी उनके जो यूनिट्स की है ऑल टू वो है 1120 टन्स पर डे। उनके 3 डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनकी एक कैपेसिटी 200 टन्स, 400 टन्स एंड 520 टन्स पर डे है। और जो उनका सर्टेन स्टॉक वो जो मेंटेन करते हैं कस्टमर्स के उसकी डिफरेंट 36 टाइप है जो कि वो प्रोड्यूस करते हैं और डिफरेंट कस्टमर्स को आगे डिलीवर करते हैं। उनमें उनकी कट लेंथ, डेनियर और शेप डिफरेंट होता है जो डिफरेंट कस्टमर्स को जाता है। और इस सब 36 टाइप ऑफ स्टॉक को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर है और बहुत ज़्यादा इसमें चैलेंज है जो कि हम इफेक्टिव वेयर हाउसिंग करके उसको दूर कर सकते हैं। तो कुछ चैलेंजेस हैं इसमें कि वेस्टिंग हम कर रहे हैं हाफ ऑफ स्पेस की, लाइक 6 से ज़्यादा हम इसको नहीं स्टैक कर सकते, लेकिन हम इसमें इंटरफ्लोर डाल के 6 इसके ऊपर वाले फ्लोर पे स्टैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जगह मौजूद होती है अपनी जो लॉट है या जो यूनिट से हमें आ रही है प्रोडक्शन उसको स्टोर करने में। और जो इब्राहिम फाइबर्स हैं वो 26 बेल लिफ्टर ट्रक्स यूज़ कर रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बिग मेंटेनेंस, उनकी फ्यूल, उनकी जो लेबर है उसकी कॉस्ट आ रही है और जो कॉन्स्टेंट रिपेयर कॉस्ट होती है वो भी बेयर करनी पड़ती है, जो कि जिसमें ह्यूज एफर्ट इन्वॉल्व है। और जो इनकी कैपेसिटी प्लांट्स हैं और उनकी जो स्टॉकिंग डेट्स हैं वो ये है कि जो 6000 टन है जो पहला प्लांट है वो 6000 टन है और 30 डे का स्टॉक मेंटेन कर सकता है, और जो प्लांट नंबर 2 है वो 8000 टन का और 20 डे का स्टॉक मेंटेन कर सकता है, और कैपेसिटी ऑफ प्लांट 3 जो है वो 8500 टन है जो कि 16 डेज तक का स्टॉक मेंटेन कर सकती है, और जो इनकी कंबाइंड कैपेसिटी है वो 22500 टन है जो कि 20 डे तक का स्टॉक मेंटेन कर सकती है। और इस
इतने बड़े स्टॉक को अगर हम प्रॉपर वे में इनकी वेयर हाउसिंग और इनकी पैकिंग और शिफ्टिंग नहीं करेंगे, तो इनकी शिफ्टिंग और शिफ्टिंग में जो कॉस्ट आएगी वो सारी उनको बेयर करनी पड़ेगी, जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये जो बेयर्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होती हैं। इनमें हल्का-सा भी अगर कट आ जाए या इन पे हल्का-सा ज़्यादा प्रेशर आ जाए या इन पे हल्का-सा आउट ऑफ बैलेंस हो जाए तो पूरी स्टैकिंग गिर सकती है और जो इनका मॉइस्चर है वो खराब हो सकता है। मॉइस्चर जो है वो उसको पॉलिस्टर की क्वालिटी को खराब कर सकता है। और जो और हम वेयर हाउसिंग प्रॉपर डिफरेंट जो वेयर हाउसिंग में उनकी जो जगह है वो उनको टैग्स करके ताकि प्रोडक्ट मिक्स ना हो और कस्टमर की कंप्लेन ना आए प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को लेके और प्रोडक्ट के जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट जा रहे हैं उनकी मिक्सिंग को लेके। थैंक यू, दैट्स फ्रॉम ऑल फ्रॉम माय साइड। Taimur. सर हमने इसमें सबसे पहले ये किया कि वेयर हाउस की कैपेसिटी को ज़्यादा करने के लिए पहला स्टेप जो ये किया कि इसमें कॉस्ट सबसे कम हो। इसमें स्टेप किया गया वो बेल्स का हाई लेवल जो था तो 6.7 किया गया, जिससे हमारी कैपेसिटी 17% बढ़ गई और ये काम हमने तीनों वेयर हाउस में किया। उससे ये हो कि हमारी टोटल कैपेसिटी जो थी वो 22,500 टन थी, जो कि इंक्रीज होकर 26,250 टन हो गई और 20 डेज से बढ़कर 23.3 डेज तक चला गया बगैर कोई कॉस्ट के किसी चीज़ के। इससे ये हुआ कि हमारी ट्रायल्स जो थी वो बस हमने ये चेक करना था कि उससे जो हमारे जो निचले वाला जो बेल है वो उसको नुकसान तो नहीं होता, या जब हमें 6 के ऊपर जो बेल उससे वो नीचे तो नहीं गिरती। तो हमने ये ट्रायल किया था और ये ट्रायल बहुत सक्सेसफुल रहा। तो अब हमारे तीनों जो वेयर हाउस हैं तो अब हम उनमें ऐसे ही सैमन लेयर्स के हिसाब से हम उसमें बेल लगा रहे हैं। As a second measures, the capacity of Plant C warehouse was doubled from 85,000 tons to 17 tons by constructing an interfloor unit. A bale transport system was installed which automatically moved the bales up and down by conveyors and bale lifts. The total storage capacity increased from 22,500 to 31,000 tons. The storage capacity time increased from 33.4 to 37.6 days, which is increase of another 70%. This first increase was implemented throughout all warehouse and include zero cost. The second increase cost about 25 million rupees and has an estimated payback period of 5 years. Thank you, Taimur. Uh, this is the diagram of the interfloor which was constructed as a second measure in the warehouse 3, and as you can see that we can stack 6 to 7 bales in the lower floor and same height in the upper floor. There is a bale conveying system which conveys the bales from the lower to the upper and upper to the lower as per requirement, and lifters can move on both floors. By this, we can basically improve, we can double the capacity of the regular warehouse which has one floor and which has a lot of empty space on top of it. The new plannings and evolution which are being carried out in Ibrahim Fibers consist of increasing the bale height, the tier height from 7 to 8. The trials are included because the trials take about 1 month time, and it is important to see that the lower bale remains intact and the ties don't break and under pressure. Because if there is one more, you can place one more bale, you can again gain about 16 to 17, 15 to 16% increase in capacity. And this trial is being carried out at the moment. Also for plant 1 and 2, where the warehouses have a single floor, the interfloor is being planned to double the capacity. The third measure is being taken that another big warehouse is being planned across the loading area,
which will have an automatic conveying system. In this, the bales will basically be transported from one warehouse over the road into the second warehouse through bale conveyors, which will be smart conveyors, and they will read the um, barcode on the bale sticker and divert the bale to the respected area where the bale have to be stacked, so that the manual handling will be decreased, the risk will be decreased, and the re-handling and reshifting of bales will also be decreased. By this, we can save manpower, the cost of bale lifters, and also the capacity will be about 30,000 tons, which will be all the same as the current capacity of 31,000 tons. This is the diagram of the smart warehouse. You can see on the right, on the left, they are the current warehouses, warehouse 1, 2, and 3, and across the road, you can see 3 more warehouses, which are smart warehouses, and the conveyors which are crossing the road over the top. So these are the improvements being carried out at the moment, and to improve the warehousing, to improve the capacity, to improve the space utilization, and to improve to decrease the manhandling, reshifting, and the cost of bale lifters in Ibrahim Fibers. Thank you very much.